Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our class wherein we are going to do the daily news analysis. And in today's analysis there are only a few topics, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है. So कौन से वो topics हैं? देख ले एक बार, right? So those topics are an internet ban will not restore peace in Manipur because lots of issues are going on over there in the Manipur. Next is the right approach. Third is publisher platform imbalances need fixing. Fourth is use of Indian languages as optional medium. So optional medium in the sense of this schooling, right? So in the schools, the students are supposed to get the education in their mother tongue or any native language like that. So we will be talking about that in the fourth topic. Next is portal launch to report violation of ban on e-cigarettes. So we are going to do this as well. Let's get started with this, but before that, little bit of information related to the courses. So 24th of July, the courses are going to start related to BA, MA, diploma plus UPSC preparation, only UPSC preparation. It's all these courses are going to start on 24th of July. Not much of the time is left, so you can join these. Apart from that, philosophy optional is going to start in September, first week of September, or you can join even now as well because the course is still going on and very few classes are completed as of now. बहुत ही कम classes हुई हैं, तो आप उनके recorded videos देख सकते हो और बाकी जो continuation रहेगा till that of the September, so वो सारे के सारे आप कैसे देख सकते हैं? Live देख सकते हैं. Okay. Essay enhancement program is also being the admission is still open. You can join even now, and score enrichment program philosophy admission is still open in this as well. Apart from that, you can join the NCERT module class as well. The and any details related to any of these courses you can get it from these numbers. आप इन numbers पे call करके सारा information आपको मिल जाएगा, या फिर tathastuics.com जो है यहाँ पर भी आप visit कर सकते हो to get the details. And apart from that, this is our address. इस एड्रेस पे जो है आप विजिट कर सकते हो in order to get any doubts cleared, and यहीं पे आके आप एडमिशन ले सकते हो. Okay, chalo. So now let's get started with this. The very first topic is related to an internet ban will not restore peace in Manipur. See, whenever any kind of issue arise, कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, कहीं पे भी riots हुआ, कुछ भी दिक्कत हुआ, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरनेट जो है उसी को ही बैन कर देती है, आप नहीं उसको यूज़ कर पाते हो, राइट? उसके पीछे का पर्पस ये होता है कि किसी तरीके का कोई फेक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट ना करे, या फिर कोई जो है किसी तरह का कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो गलत या फिर जो एक पास ऑन होता है ना, ट्रिगर कर देने वाली चीज़ें पास ऑन ना हो, सो दैट कि जो भी वायलेंस हो रहा है वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए. ओके, तो वो कम्युनिकेशन जो है उसी चीज़ को ये कट ऑफ कर देते हैं. सो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हैपन्स, वो दैट इज़ व्हाट द पीपल एक्चुअली थिंक वाइल अप्लाइंग फॉर वाइल डूइंग दिस थिंग कि इंटरनेट बैन जो है वो करने पर गवर्नमेंट यही चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट करती है और ये सोचती है. ठीक है, तो इसी में ही जो है काफ़ी सारे डिटेल्स वी विल बी गेटिंग टू नो अबाउट दिस थिंग. सो अभी रिसेंटली आप सभी को ये पता ही होगा कि मणिपुर में एक्चुअली चल क्या रहा है. इसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको कल परसों में मणिपुर वायलेंस का वीडियो भी यू विल बी गेटिंग इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन A to Z, जो सारा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, सो द मणिपुर वायलेंस हैड बिगन. जब ये मणिपुर वायलेंस जो है वो 3 मई को जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम जो है उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, बट अभी ये 3 मई से ये सारी चीज़ें चल रही हैं एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, मणिपुर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है करके. बट अभी जो इंडिया के लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान उस साइड गया था जब रिसेंटली 19th of July को एक वीडियो क्लिप सर्कुलेट हुई थी वेयर इन सेक्शुअल वायलेंस हैड हैपेंड बाय अ मॉब. एंड वहाँ पे ये चीज़ कहा गया था कि ये जो है this was something really very heinous thing which happened and it could happen to, मतलब क्या ही बोले इस चीज़ के बारे में. तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक वीडियो क्लिप
रिलीज हुई जिसमें कि 2 women वर paraded naked and one of them was raped also by one of the people, one of the person from the mob itself, and the brother was also killed, and the brother of the lady was also killed during that particular time, and all these things happened behind, and all these things happened, and इसके पीछे का जो reason है, that reason people are saying that it was a fake news, and that fake news was that someone from their community was raped by the another community. So in order to take revenge they did this thing, but revenge लेने के लिए innocent person जो है, innocent ladies जो है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उनके ऊपर अपना जो दमखम दिखाने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं है, राइट? जिसने गलत किया उसको जाकर के आप कुछ बोलते हो, करते हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट द लेडी हु हैज नथिंग टू डू, who had actually who is not having any kind of connection with whatever happened or whatever kind of the news is being spread and doing something to her and harming her dignity, her life, and her mentally torturing, not only the physically but mentally torturing her. So all these things actually attracted the attention of India. इंडिया के जो लोग थे तब जाकर के उनकी आंखें खुली कि भाई मणिपुर में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है, बहुत खतरनाक सिचुएशन अभी चल रहा है. नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली मणिपुर में जो है एक वाइड स्प्रेड इंटरनेट शटडाउन भी किया गया था. एंड जब ये इंटरनेट शटडाउन हुआ तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो भी रेज करे गए थे कि मतलब क्यों इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है. इज इट अ काइंड ऑफ apathy which is actually being showed over here. Now the point is that if the internet is not there, then how people would be able to show their plight to the people, that to the other people who are not over there? So दूसरे लोगों को कैसे बताएंगे? To the government, how they would be able to speak up? You are not allowing them to come on the road and shout and strike or do whatever they want. So you are not allowing them to come on the road also, and you are shutting down internet as well. Then how they are supposed to show their plight? वो अपनी जो दुख है, अपना तकलीफ है, वो कैसे बताएंगे करके. So this was the kind of situation, and it was not like that कि उन्होंने जो है इंटरनेट बंद कर दिया तो चीज़ें जो है वो सही भी हो गई, तो ऐसा भी नहीं है. ठीक है, तो आर्टिकल में इस तरीके से बोले जा रहे हैं. दिस एनालिसिस डेल्व्स इनटू द नेचर ऑफ द इंटरनेट शटडाउन, एंड ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है इसमें यही चीज़ कहा जा रहा है कि इंटरनेट शटडाउन का नेचर क्या है, कैसे है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, एंड इस क्या रिस्पॉन्स है जुडिशियरी की तरफ से. यही सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर इस एडिटोरियल में जानेंगे. दिस इज़ द एडिटोरियल ओनली. ठीक है, इस एडिटोरियल से जानेंगे. तो मणिपुर में जो इंटरनेट शटडाउन हुआ था ये 3 मई में को ही ये एक्चुअली हो गया था, एंड इट वाज डन इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिसरप्शंस व्हिच माइट हैपन. अगर कोई भी तरीके का कोई दिक्कत एक्चुअली वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, ये सोच करके जो है वो प्रोहिबिट कर दिया गया. एंड ये किस चीज़ के लिए ऊपर अफेक्टेड था? ऑल वेब ट्रैफिक एंड कनेक्टिविटी मीडियम्स इन द स्टेट. तो कोई भी कनेक्टिविटी मीडियम या फिर जो वेब ट्रैफिक है उन सभी चीज़ों को तो ऑल ऑफ अ सडन जो है इस चीज़ों को बंद कर दिया गया था. ऑर्डर्स किसने इशू करी थी? तो ऑर्डर वाज इशूड बाय द होम कमिश्नर ऑफ मणिपुर अंडर द टेलीकॉम सस्पेंशन rules lacked specific instances of violence being prevented due to the shutdown, and primarily used vague language to counter anti-national and anti-social elements, spreading disinformation and false rumors on social media platforms. So in order to do this thing they actually banned the internet. तो इन्होंने क्या कहा कि हम जो है बेसिकली जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं ये स्प्रेड ना करे, किसी तरीके का डिसइंफॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करे, कोई फॉल्स रूमर स्प्रेड नहीं करे, ताकि जो एस्केलेट ना हो जाए चीज़ें. सो बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ें ना हो, इसी वजह से ये जो है इंटरनेट को बंद कर रहे हैं. क्योंकि एवरी वन ऑफ अस इज अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जितना जल्दी सही न्यूज़ नहीं स्प्रेड करती है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से जो फेक न्यूज़ होते हैं वो स्प्रेड करते हैं. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट
ही सेड कि ये जो है हमको बंद करना चाहिए। लेकिन जो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी ट्राई से जो डेटा मिला है उससे ये पता चल रहा है दैट द मणिपुर's इंटरनेट यूजर्स प्राइमरीली एक्सेस्ड इंटरनेट थ्रू दी स्मार्टफोन्स। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो सभी लोग अपना इंटरनेट कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन सिम, ठीक है, तो उससे अपना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो वायर्ड इंटरनेट है वो यूज़ कहाँ पे हो रही है, तो वो उस टाइप की ये जो इंटरनेट है उसकी यूसेजेस हो रही हैं इंस्टीट्यूशंस में, कमर्शियल एंड हायर सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे इनका यूज़ एक्चुअली हो रहा है। रोल ऑफ शटडाउन, अब ये जो शटडाउन हमने किया था इंटरनेट को लेकर के, तो इस टाइम क्या सिचुएशन हो रहा, इसको लेकर के क्या सीन है। इंटरनेट शटडाउन जो मणिपुर में 78 डेज तक रही है, ये इट इज एक्चुअली फर्दर आइसोलेटिंग द रीजन, ये रीजन को एक तरीके से आइसोलेट कर रहा है एंड इट इज एक्चुअली चैलेंजिंग फॉर द इंफॉर्मेशन टू रीच द रेस्ट ऑफ द इंडिया। दिस इज वेरी ऑब्वियस, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर हम वहाँ पे इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो वो एरिया जो है वो आइसोलेट हो गया, हमको वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे कैसे स्प्रेड करेगी, कैसे जाएगी। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ फेक ही न्यूज़ स्प्रेड होंगे, तो सही न्यूज़ भी तो जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ के लिए यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है दैट हाउ द इंफॉर्मेशन दैट वट एवर इज हैपनिंग इन द मणिपुर, हाउ इट विल बी रीच आउट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दूसरे कंट्री के हमारे कंट्री के दूसरे पार्ट्स में ये कैसे जाएगा करके, ठीक है। नाउ द एब्सेंस ऑफ क्लियर एविडेंस ऑफ वायलेंस, अब यहाँ पे ये एक और बात पॉइंट कर रहे हैं कि ये जो इंटरनेट शटडाउन करने से क्या एक्चुअली में इम्पैक्ट ऐसा हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्या है ये, मतलब कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन करने की वजह से जो है वायलेंस प्रिवेंशन होती है करके। तो इस चीज़ को भी लेकर के क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि क्या ऐसा करना सही भी था एंड क्या इसकी ज़रूरी है, क्या इसके उस टाइप के कोई इम्पैक्ट जो है वो हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स ज़रूर है जो कि सामने आ रही हैं, जैसे कि ये इंटरनेट के शटडाउन होने की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं, जो मणिपुर के लोग हैं उन लोगों को, जैसे कि जो स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो सिटीज़ है वहाँ पे जा कर के रह रहे हैं, तो दे आर फेसिंग हार्डशिप बिकॉज उनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि घर से पैसे ट्रांसफ़र होते थे, वहाँ इंटरनेट ही नहीं है, तो हाउ दे वुड बी एक्चुअली transferring money, so they are facing financial hardships ये इंटरनेट की शटडाउन की वजह से। एंड स्टडिंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड रेजिडेंट्स अंडर अनेबल टू अप्लाई फॉर इवैक्यूएशन टू द रिलीफ कैंप्स ऑल्सो। इंटरनेट नहीं है तो हाउ दे आर सपोज टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन कि भाई हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, प्लीज सेव अस, राइट। तो इवैक्यूएशन के लिए भी जो है दे आर नॉट एबल टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर देखें तो ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन करने से किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यस, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, बट देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये जैसे कि स्टूडेंट्स की बात होगी, ये खुद को इवैक्यूएट कराने के लिए, खुद को बचाने के लिए जो सिचुएशन हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल रिस्पॉन्स। तो जुडिशियल यानी जुडिशरी का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होता है? हाई कोर्ट जो है मणिपुर की, दे रिस्पॉन्डेड टू द वेरियस पेटिशंस विच वर एक्चुअली फाइल्ड अगेंस्ट दिस इंटरनेट शटडाउन ओनली। इंटरनेट को ये जो है पार्शियल रेस्टोरेशन करने के लिए इन्होंने बात कही थी एंड जुलाई 7 को ये चीज़ हुआ था, बट इट्स ऑर्डर लैक्ड क्लियर डेफिनेशन। यहाँ पे जो इन्होंने ऑर्डर दिया तो ये जो क्लियर डेफिनेशन का नहीं समझ में आ रहा है, दैट ऑन द टर्म्स लाइक सोशल मीडिया एंड कंटिन्यू टू रेस्ट्रिक्ट इंटरनेट यूसेज पर्टिकुलरली थ्रू दी स्मार्टफोन्स। यहाँ पे जो है इन्होंने बात नहीं सुनी इस चीज़ को। इन्होंने कहा कि स्मार्टफोन्स के थ्रू कोई भी जो इंटरनेट है दैट द पीपल कैन वोंट बी एबल टू यूज़। तो इसको जो है फर्दर इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, इसको रेस्ट्रिक्शन जो है वो वैसी की वैसी ही इसको कंटिन्यू कर दी। जब
सुप्रीम कोर्ट की बात आती है इन द केस ऑफ द अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी इंटरनेट के शटडाउन को ही लेकर के क्वेश्चन करने पर था। इट डिड नॉट एडजुडिकेट एनी इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर एंड इंस्टेड डायरेक्टेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज टू रिव्यू सच ऑर्डर्स विदाउट इंश्योरिंग देयर रेस्टोरेशन। इसमें इन्होंने जो है, ये जब केस आया था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये केस में भी यही मतलब इंटरनेट शटडाउन को ही लेकर के था, बट यहाँ पर भी जो है इंटरनेट शटडाउन के लेकर के कुछ खास बात नहीं करी गई, लेकिन इन्होंने कहा कि जो भी अथॉरिटीज इस चीज में डील करती हैं दे नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि भाई रेस्टोरेशन जो है वो हो जाए करके। बट एज सच अगर आप कहें कि बहुत ही वाइड स्प्रेड किसी तरीके का उन्होंने जो है कॉन्क्रीट डिसीजन ले लिया हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये चीज़ नहीं आई। बिकॉज ऑल इन ऑल एवरीथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करती है तो वो चीज़ है एक्चुअली इंटरनल सिक्योरिटी। तो वो बेसिस जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न हो जाता है, जिसकी वजह से द पीपल एट द हायर पोस्ट, द पीपल हु आर अकाउंटेबल फॉर दिस, हु आर लुकिंग एट दिस थिंग, दे डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन द अदर फैक्टर्स विच आर ऑब्वियसली वेरी मच नीडेड। उनको दूसरे फैक्टर्स पे भी ध्यान देने की एक्चुअली ज़रूरत है। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट इज एग्जामिनिंग ब्रॉडर इश्यूज। अब यहाँ पे जो है दिंगांग लुंग गंगमेई वर्सेस मुत्तुम चूरामनी मीती, इन ये जो केस थी, इस केस में जो है वेयर द इंटरनेट शटडाउन्स आर कंसीडर्ड एन इनहेरेंट एलिमेंट फॉर द कंट्रीब्यूटिंग टू द लैक ऑफ क्लैरिटी एंड दैट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर भी सेम देखिए, दो केसेस यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, ये दोनों ही केसेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फर्दर अगर आपको किसी आंसर में लिखने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंटरनेट शटडाउन को लेकर के फिर यहाँ पर ये पॉइंट आया था, लेकिन फिर वही पॉइंट है कि कोई खास क्लैरिटी हमको देखने के लिए नहीं मिल रही है। देयर इज नो clarity related to this thing and the accountability is also lacking over here. We don't have much information, मतलब much टू से अबाउट ओवर हियर कि क्या मतलब क्या करे भैया, इंटरनेट शटडाउन कंप्लीटली कर दे, पार्शली कर दे, या फिर नहीं होना चाहिए, ऐसा खुल करके किसी भी जजमेंट में जो है उस तरीके से बात नहीं करी गई है। ऑल इन ऑल इस चीज़ से यही समझ में आ रहा है जो जुडिशियल अथॉरिटी, जो जुडिशियरी है, दे आर समवॉट डिपेंडेंट ऑन द अथॉरिटी हु आर डीलिंग इन दिस थिंग। एंड ये चीज़ क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनेट एक्सेस देकर के अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती हैं देन वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। बट यहाँ पर मणिपुर के केस में अगर वो वीडियो क्लिप की अगर हम बात करें, वो अगर स्प्रेड नहीं हुआ होता तो इट वुड हैव बीन नॉट पॉसिबल फॉर अस टू नो कि ऐसा भी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं मणिपुर में। तो अगर आप, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इसकी जगह पे आप दूसरा चीज़ भी देखो कि भाई हमको वहाँ पे क्या चल रहा है वो भी तो जानना ज़रूरी है। वी नीड टू नो अबाउट दैट एज वेल। सो ये दोनों ही चीज़ें बैलेंस होकर के किस तरीके से चले, हमको वो पाथ जो है वो देखने की ज़रूरत है। वी नीड टू टेक आउट समथिंग जिससे कि हमको वो पाथ एक्चुअली पता चल सके। नाउ वाइटल रोल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, एज आई टोल्ड यू, इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The internet ban in Manipur led to misinformation spreading rather than reducing its impact। कि ये जो यहाँ पे क्या हुआ कि इंटरनेट बैन करने की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन जो थी ये एक्चुअली स्प्रेड कर रही थी, रिड्यूस नहीं किया इसने किसी तरीके का चीज़ कि हाँ भैया मिस इन्फॉर्मेशन कम करने के लिए इन्होंने इंटरनेट बैन किया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चीज़ें होने लगी। एंड यही चीज़ जो है अभी जो सेक्सुअल वायलेंस हुआ था वो उसी केस पे हुआ था। मैंने आपको बताया ना फेक न्यूज़, तो फेक न्यूज़ की वजह से उन बेचारी लेडीज़ को जो है जीवन भर के लिए मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर, अब वो जो हुआ है वो पूरे जीवन भर के लिए जो है उनको याद रहेगा। दैट यू कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम देयर मेमोरी, यू कैन नॉट डू दैट।
information flow is crucial in holding the state and central governments accountable, and this is also important. यहाँ पे देखो ये सारे points जो यहाँ पर बोल रहा है द राइटर ही इज सेइंग, ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पर बोल रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको ये जो अगर इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है ये दोनों मिल करके कुछ भी कर रहे होंगे, वी वोंट बी एबल टू नो कि वहाँ क्या चल रहा है. वैसे भी व्हेन इट कम्स टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वी डोंट गेट मच ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज स्टेट्स. ये जो 7 सिस्टर्स है इनके बारे में हमको पता ही नहीं चलता कि वहां पे हो क्या रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली इज इन न्यूज, यूपी इज इन न्यूज, गुजरात इज इन न्यूज, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, all these states will be in the news, Bengal will be in the news, but not those 7 sisters. And further south also we don't get much of the information related to these states and all. I'm not saying कि ये जो जिन states के बारे में information दे रहे हैं वो बंद कर दो, no, I am saying कि इनके बारे में भी साथ साथ उधर भी focus करो. Okay, so information flow is very much important over here. So and for this thing internet ban अगर हो जाएगा तो how would be possible, right? So information is flow so that the governments, central and state governments, both can be held accountable for the truth, justice and reconciliation, and its restriction hindered accountability and that of the awareness. Information flow ही नहीं करेगी, लोगों को पता कैसे चलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है. And when we are not able to know anything, accountable कौन होगा जब पता ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे दिमाग में तो यही रहेगा कुछ तो हुआ ही नहीं, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं. ओके, सो फॉर दिस थिंग ही इज सेइंग दैट कि हमको इंटरनेट बैन नहीं करना चाहिए. कोर्ट्स को जो है वो दे आर सपोज टू इम्प्रूव ऑन द प्रेसिडेंट सेट बाय द अनुराधा भसीन केस एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडहेरेंस. सो दिस इज समथिंग विच दे नीड टू डू कि इनको अकाउंटेबल हेल्ड करना चाहिए कि भाई पास ऑन कर दिए जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है भाई, लेकिन उनसे रिपोर्ट तो मांगो क्या है आया, व्हाट आर यू थिंकिंग इन ऑर्डर टू डू, राइट. तो what जैसे कि आप लोग वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो what is the way forward, what you have planned. So all these things needs to be taken care of by the judiciary. So this was really very good article by Apar Gupta. So this was really very good article. Next is that use any Indian language as optional medium says CBSE. तो कोई भी जो लैंग्वेज है वो आप यूज कर सकते हो एज अ मीडियम. सो यहाँ पे है वो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. तो CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है उन्होंने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि इन्होंने ये चीज़ कहा है दैट इंडियन लैंग्वेजेस को भी कंसीडर करा जाना चाहिए एज एन ऑप्शनल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो इंस्ट्रक्शन के तौर पे हमको जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको भी देखने की, उनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है. तो CBSE हैज़ एडवाइज्ड एन इंडियन लैंग्वेज एज an option for pre-primary classes to that of the 12th class. तो pre-primary class से लेकर के 12th class तक का उन्होंने कहा है कि आप जो है किसको इंडियन लैंग्वेज को, जो भी इंडियन लैंग्वेज है एक चूज कर लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों जो बच्चे हैं उनको इंस्ट्रक्ट करिए. सो दिस इज व्हाट इज बीन सेड. एंड जो NEP अभी रिलीज हुई थी दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में, तो इसमें भी जो कॉग्निटिव एडवांटेजेस हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की वजह से, देखिए जब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं तो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा खासा होता है बिकॉज यू कैन नॉट स्पीक मच ऑफ द लैंग्वेज बट वी इंडियंस आर रियली वेरी गुड एट दिस. वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक हिंदी, वी स्पीक आर मदर टंग ऑल्सो. हम हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, अपना मदर टंग भी बोलते हैं. तो 3 लैंग्वेजेस तो ऑलमोस्ट हर किसी का रहता है ना इंडिया में. बट एवरी वन आर नॉट केपेबल एनफ टू डू अडेप्ट टू सो मैनी लैंग्वेजेस. हम सभी लोग मतलब सब लोग जो हैं वो एक्चुअली इस तरीके से अडेप्टेबल नहीं होते हैं कि वो इतने सारे लैंग्वेजेस बोल सके करके. ठीक है, तो इसीलिए ये जो कह रहा है कि NEP में ये चीज़ पॉइंट करी गई थी कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म होने की वजह से जो है कॉग्निटिव एडवांटेजेस अच्छी का मतलब सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव एडवांटेजेस रहती हैं फॉर यंग लर्नर्स, पर्टिकुलरली
पर्टिकुलरली जब उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से एक्सपोज किया जाता है, मतलब उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सुनने को मिलती हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, छोटे बच्चे होते हैं घर पे, ठीक है, उनको आप डिफरेंट जैसे कि कभी आपने उनको किसी लैंग्वेज का कार्टून दिखाया, कभी किसी लैंग्वेज का जो है उनको पोएम सुनाया, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के पोएम सुना रहे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंगली एंड घर पे जो है आप बात कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा कर दोगे मिक्स तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो दे वोंट बी एबल टू डेवलप दी स्पीकिंग स्किल्स एंड ऑल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक दो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो दे स्टार्ट स्पीकिंग, दे कुड स्पीक इन दिस चाइनीज ऑल्सो और दैट ऑफ द रशियन ऑल्सो, दे कैन बिकॉज वो डेवलप कर लेते हैं। तो क्योंकि बच्चे जो है ना वो उसी हिसाब से रहते हैं, दे स्पीक, दे वेरी वेरी ईजिली, वेरी नेचुरली दे अडेप्ट ऑल दोज थिंग्स। ये जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें ये कह रहे हैं दैट यहाँ पे ये पॉलिसी जो है बहुत ही स्ट्रांगली एडवोकेट करती है जो होम लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज है या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है, उसको एज अ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करने के लिए। क्या क्या चीज़ें को, किन इनमें से कोई भी, मदर टंग हो गया, जो भी लोकल लैंग्वेज हो गई, या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है, इन सभी को एज अ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करने के लिए फॉर टू दी चिल्ड्रन एंड एटलीस्ट अंटिल ग्रेड 5, कम से कम जो 5वीं क्लास तक जो है, क्लास 5th तक तो है, हमको क्या करना चाहिए, उनकी लैंग्वेज में ही उनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 5th क्लास तो कम से कम होना चाहिए, बट एडवाइजेबल है अप टू दैट ऑफ द 8th ग्रेड तक, तो ऐसा होना ही चाहिए। बट ये सारी चीज़ें होने के लिए वी नीड टीचर्स ऑल्सो ना, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ा सके, राइट। सो अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड टीचर्स केपेबल ऑफ टीचिंग in multilingual settings is really very much important। हमको वैसे टीचर्स चाहिए होंगे जो इतना स्मार्ट हो, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोल सके, है ना, वो इंस्ट्रक्ट कर सके वैसे ही एफिशिएंटली। The creation of high quality multilingual textbook, the limited timetable, multilingual textbook भी तो चाहिए, ऐसा थोड़ी कि आपने पढ़ा दिया बस बोल दिया ऐसे। we need to have the books also जो कि उसी लैंग्वेज में हो, and apart from that timetable भी तो limited होता है, and especially when it comes to the government schools का क्या होते हैं, 2 शिफ्ट में होते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय का ले लीजिए तो 2 शिफ्ट होते हैं, एक मॉर्निंग हो गया, एक इवनिंग हो गया, ठीक है। तो 2 शिफ्ट में है, तो वहाँ पे किस तरीके से क्या मैनेज होगी, उसके बाद जो है ये इंस्ट्रक्शन कैसे क्या पास ऑन होंगे, कौन टीचर होगा, कैसे पढ़ाएगा, बहुत सारी एक्चुअली चीज़ें होती है इसमें। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमको बुक भी तो है, टीचर्स के साथ साथ बुक भी तो हमको डिफरेंट लैंग्वेजेस में चाहिए होंगी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जोसेफ इमैनुअल जो कि डायरेक्टर हैं CBSE के, ठीक है, इन्होंने कहा दैट वन ऑफ द मेजर स्टेप्स टेकन नाउ इज द डायरेक्शन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू द नेशनल काउंसिल दैट इज द NCERT टू प्रिपेयर टेक्स्ट इन। अभी यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट ये एक पॉइंट इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है NCERT को कि जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, उसमें उनको जो है वो प्रिंट करे, उनको जो है रिलीज़ करे। अब आपको ये बताना है कि ये जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है, राइट, एंड विच आर्टिकल इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू add these languages. Now, the facilitate learning teaching process and offer exams in the Indian languages also. For all these things we need the textbooks. हमको textbooks चाहिए, और हमको इसके अलावा, ठीक है, हमने बच्चों को इंस्ट्रक्ट तो कर दिया लोकल लैंग्वेजेस में, राइट। सो वी हैव इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स इन द लोकल लैंग्वेजेस और दैट ऑफ द मदर टंग, ठीक है। तो मदर टंग में भी अगर हमने इस तरीके से किया है तो we need to take the exam also in that language. So वो भी एक तो पॉइंट है ना, ये भी तो एक पॉइंट है। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमको बुक भी चाहिए, सिर्फ इंस्ट्रक्ट ही नहीं करना है, बुक भी चाहिए, सिर्फ बुक भी नहीं चाहिए, हमको उसमें एग्जाम भी तो लेना होगा। सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट। तो ये जो आर्टिकल है ये इस चीज़ के बारे में बात करता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है दैट इज रिलेटेड टू दी पोर्टल लॉन्च टू रिपोर्ट वायलेशन ऑफ बैन ऑन ई सिगरेट्स। ई सिगरेट्स जो है इसको 2019 में ही बैन कर दिया गया था कि इसको जो है आप सेल नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट यूज इट। ई सिगरेट्स आर रियली वेरी बैड फॉर योर हेल्थ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी आपको लत लग सकती है, इसमें निकोटीन का यूज होता है विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये बच्चे अभी हैबिचुएट हो सकते हैं इसको लेकर के, दूसरे भी जो है लोग उससे हैबिचुएट हो सकते हैं, एंड स्पेशली यहाँ पे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ई सिगरेट्स को 2019 में बैन कर दिया गया था। बट सम एक्टिविस्ट्स दे हैव ऑब्जर्व्ड कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ई सिगरेट्स अभी भी अवेलेबल है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये 18 ईयर्स से 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको भी इसको सेल किया जा रहा है। सो जो 18 साल से कम के बच्चे हैं हु आर नॉट सपोज टू टेक इन दिस, तो वो लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम ओवर हियर, राइट। तो ये चीज़ जब हाईलाइट हुई थी तो जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, टोबैको कंट्रोल से रिलेटेड ये लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जब इसको पॉइंट आउट किया तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दी टू बैन दिस थिंग। इसको जो है ऑनलाइन पोर्टल इन्होंने लॉन्च कर रही है रिपोर्ट करने के लिए कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी जगह पे अगर आपको जो है इस टाइप का कोई चीज़ दिख रहा है जहाँ पर कि ई सिगरेट को सेल करे जा रहे हैं, राइट, सो देयर इन यू आर सपोज टू रिपोर्ट, एंड उससे रिलेटेड रिपोर्ट आप उस पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन जो है आप प्रोवाइड कर सकते हो। एंड ये पोर्टल कौन सी है? www.violation-reporting.in। ओके, सो सिंपल सा है www.violation, ओके, यहाँ पे ये है इस तरीके से हाइफन है एंड violation-reporting.com, reporting.in है, ठीक है, इंडिया। सो इन इज ओवर हियर, राइट। सो दिस इज व्हाट इज दी पोर्टल। तो इस पोर्टल पे आप जो है उसकी सारी डिटेल्स डाल सकते हो एंड विल अलाउ फास्टर एक्शन अगेंस्ट एनी रिपोर्टेड वायलेशन। तो जहाँ पे भी वायलेशन का अगर यहाँ पे दिखेगा आपने रिपोर्ट कर दिया तो उसके ऊपर एक्शन जो है बहुत क्विकली लिया जाएगा। सो अगेन द डिजिटाइजेशन इज हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे कौन जो है कौन सी चीज़ को वायलेट करने की बात हो रही है? तो पैका। पैका क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट, दैट इज द पैका। इसमें ब्रैकेट्स में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, इनका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टीजमेंट, ये सभी चीज़ों पे बैन है रिलेटेड टू ई सिगरेट्स। प्रोडक्शन से लेकर के इसका सेलिंग तक, उसका एडवर्टीजमेंट भी जो है सभी चीज़ों पे बैन है। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। नाउ सो these are the things actually which has been pointed out over here, and e-cigarettes की availability जो है वो इंडियन मार्केट में नहीं होनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इस चीज़ को सब्सटैंशिएट करता है दैट इट दिस थिंग शुडंट हैपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोहिबिशन, ठीक है, prohibition of electronic cigarettes production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement act, that is the PECA। and यहाँ पे क्या है? www.violation-reporting.in, इसके ऊपर जाकर के जो है आप इसके रिलेटेड रिपोर्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा है द राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच इज एक्चुअली रिलेटेड टू दी बेल। ये जो है वो बेल से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जो पूरी की पूरी बात है वो यही बात कह दे रहा है कि कोर्ट को पूरे सबूतों को देख करके अकॉर्डिंगली जो है डिसीजन लेना चाहिए, ना कि अगर पुलिस जो है अगर स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करती है, पुलिस अगर स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करती है तो सिर्फ उसी के ही बिना पे, सिर्फ उसी के ही बेसिस पे हमको बेल ग्रांट नहीं करे, वो गलत चीज़ है। सो दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल, दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर जो है तीस्ता सेतलवाड़ जो है,
तीस्ता सेतलवाड़ जो है इनसे रिलेटेड यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो कहा गया है एंड इनको जो है बेल डिनाई कर दिया गया है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर बात करी जा रही है कि यहाँ पर जो चार्जशीट फाइल करी गई थी तो उस पे उन्होंने जो है चार्जशीट के साथ जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो प्रोवाइड करे गए थे वहाँ पे उन्होंने ऐसा जो है कुछ एविडेंस नहीं देखा, बल्कि उन्होंने पुलिस के ऑब्जेक्शन के बेसिस पर जो है स्ट्रांगली अपोज किए थे। तो उसके बेसिस पे जो है इनका बेल यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। अब पॉइंट यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले कि तीस्ता सेतलवाड़ जो है वो एक्चुअली है कौन। आप सभी को जो है 2002 गुजरात राइट्स जो है वो सभी याद होगा हर किसी को, जिसमें कि प्रधानमंत्री हमारे जो प्रेजेंट पीएम है प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उनके ऊपर ये चीज उंगली उठाई गई थी कि दैट ही वाज एक्चुअली द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू लेट दिस थिंग हैपन। तो ये चीज होने के पीछे जो है, होने देने के पीछे जो है उनका हाथ था करके, ठीक है। तो ये चीज था, राइट तो ये चीज बोली गई थी। तो यहाँ पर ये है कि तीस्ता सेतलवाड़ जो है उन्होंने ये नैरेटिव एक्चुअली किए थे। इसमें मतलब ये जो है बोला जा रहा है कि तीस्ता जी जो है तीस्ता सेतलवाड़ उन्होंने ये नैरेटिव एक्चुअली स्टार्ट किए थे एंड विक्टिम्स जो थे उनको एनकरेज कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व करें कि उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये बोल करके, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसमें काफ़ी सारे केसेस हुए। अभी रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि इसी केस में जो गुजरात 2002 का ये जो राइट हुआ था, 2002 का राइट, तो इसमें क्लीन चिट भी दे दिया गया था दैट ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी वे इन ऑर्डर। अगर जब ये जो राइट हुआ था गुजरात का 2002 का, तो उसमें जो है क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तीस्ता सेतलवाड़ जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व थी एंड ये सारी चीज़ जो है वो किस बेसिस पे, जैसे कि मैंने और भी आर्टिकल्स रेफर किए थे उन सभी में ये दिया हुआ था कि इनको जो है कांग्रेस की तरफ से फीडिंग थी कि भैया आप जो है ये काम करो, ओके कि आप जो है इस तरीके से करो। तो एक तरीके से बैकिंग उनको मिल रही थी कहाँ से, कांग्रेस की तरफ से। एंड इनको जो है पद्मश्री भी मिला था कांग्रेस गवर्नमेंट की ही तरफ से। ऑन व्हाट बेसिस, एंड वो बेसिस मोस्ट प्रोबेबली यही थी कि वो जो है वॉइस उठा पाई थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। खैर, तो यहाँ पर दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन की वेदर इन्होंने सही किया, क्या किया उन्होंने। जो अगर सपोज कि अगर कोर्ट ने बोल दिया है कि दैट पीएम मोदी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट, तो ऑब्वियसली ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट। एंड इफ शी हैज़ डन समथिंग लाइक दिस वेयर इन इन्होंने जो है गवर्नमेंट को स्पेशली एंड पॉलिटिकल पार्टीज को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए इन्होंने ज़बरदस्ती जो है इन्वॉल्व करवाए थे विक्टिम्स को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, तो दैट वाज समथिंग विच वाज डन, विच वो इफ इट वाज डन देन इट वाज रियली वेरी रॉन्ग थिंग। तो ये बहुत ही गलत चीज़ हुआ, क्योंकि हम जो है चौथा स्तंभ मानते हैं मीडिया को। अगर यही गलत न्यूज़ स्प्रेड करने लगेंगे तो देन हम किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? नॉट इवन द न्यूज़पेपर, नॉट इवन द चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, किसके ऊपर हम ट्रस्ट करें? So that's important point. Now, the three-judge bench led by Justice B.R. Gavai found no real need to keep Teesta Setalwad in prison during the trial based solely on the पुलिस आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो थे एकदम पुलिस आर्ग्यूमेंट के ऊपर ही इन्होंने कहा कि भैया हमको नहीं लगता है कि तीस्ता सेतलवाड़ को जो है ना हमको कस्टडी में रखने की, मतलब प्रिजन जो है उसमें रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये जो केस है, ये केस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर। एंड यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमको किसी तरह कोई रीज़न एक्चुअली दिखता नहीं है, ठीक है, कि हम जो है इनको डिड नॉट सी एनी रीजन टू बिलीव दैट शी वुड एब्सकॉन्ड और टैम्पर विद एविडेंस इफ ग्रांटेड बेल। अब गवर्नमेंट यहाँ पर जो है ये बोल रहे थे कोर्ट कि हमको नहीं लगता है कि अगर हम तीस्ता को जो है तीस्ता सेतलवाड़ को अगर हम बेल दे देते हैं तो वो कहीं भाग जाएंगी या फिर एविडेंस को किसी तरीके से टैम्पर करने की कोशिश करेंगी। कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस भी रेज किए पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर के टू हर अरेस्ट विद इन अ डे ऑफ द केस बिंग रजिस्टर्ड
रजिस्टर। तो इन कोर्ट ने ये भी कहा कि भैया एक ही दिन हुआ केस को रजिस्टर हुए और आपने तुरंत जो है उनको अरेस्ट भी कर लिया था। तो यहाँ पे ये लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं पुलिस के एक्शन को लेकर के। दे सॉट द क्लैरिटी, ठीक है, तो ये क्लैरिटी भी इस चीज को लेकर के मांग रहे हैं। द हाई कोर्ट्स रिफ्यूजल टू ग्रांट बेल वाज डीम्ड कॉन्ट्राडिक्टरी ओवर हियर। तो ये जो है, अब हालांकि इन्होंने ये सारा पॉइंट बोला तो, लेकिन अब यहाँ पर क्या बात आ गया, इन्होंने बेल को देना मना कर दिया। भैया आप पहले बोल रहे हो कि नहीं और अब बोल रहे हो कि हाँ, मतलब हम पहले बोल रहे, जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिस तरीके से चीजें हुई, तो वहां पे पता चल रहा था कि बेल मिल जाएगी, आगे पता चल रहा है कि बेल ही डिनाई कर दिया। कि मतलब क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, एक थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन वाला चीज है। तो मैं पुलिस ने जो है स्ट्रांगली आर्ग्यू कर दिया कि नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने जो है नहीं बोल दिया कि ठीक है भैया नहीं करेंगे। ओके, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैज बीन, ये जो है उसी चीज़ के ऊपर एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पर ये है कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो यहाँ पर हाईलाइट होता है कि भाई आप जो है कोर्ट को सीधे सीधे एविडेंस के बेसिस पर जाना चाहिए अपना जो भी डिसीजन देना है, ना कि पुलिस के आर्ग्यूमेंट के ऊपर कि भाई पुलिस जो है स्ट्रांगली इस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर रही है तो ये भाग जाएगी, या फिर जो एविडेंस जो है उसको टैम्पर करेगी। उस हिसाब से अगर चीज़ जो है वो बोल रहे हैं तो उसकी बेसिस पे करना इज नॉट राइट ओवर हियर। नेक्स्ट इज पब्लिशर प्लेटफॉर्म इम्बैलेंसेस नीड फिक्सिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर एक्चुअली पॉइंट बात कर रहे हैं पब्लिशर्स जो है, न्यूज़ पब्लिशर्स एंड उनकी रेवेन्यू को लेकर के यहाँ पर एक्चुअली जो है सारी बात हो रही है। कोई खास बड़ा जो है ये टॉपिक हमारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इम्बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द न्यूज़ पब्लिशर्स एंड द डोमिनेंट बिग टेक प्लेयर्स सच एज दी सर्च इंजिन, जैसे कि गूगल हो गया इस टाइप के, या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे कि फेसबुक है, इंस्टा है, ये सभी जगहों पे। तो ये जो इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड दैट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एज वेल। तो हियर इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं और जो बड़ी कंपनीज हैं उनके बीच में जो टकराव है उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जो सर्च इंजिन्स हो गए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, तो बहुत सारे जो है वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि एक क्लैश टाइप देखने को मिल रहा है इनके बीच में, एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग द क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी ऑल्सो एंड इवन द सस्टेनेबिलिटी। डिजिटल न्यूज़ जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन हो रहा है। टू मेन कंसर्न्स, यहाँ पे दो मेन कंसर्न्स की पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो एक तो कंसर्न है फेयर वैल्यूएशन की एंड दूसरी कंसर्न है एन्यूमरेटिव अकाउंटेबिलिटी की। फेयर वैल्यूएशन where publishers struggle to receive fair compensation for their contents contribution to digital advertising revenues। यहाँ पर क्या है, जो फेयर वैल्यूएशन क्या है, पब्लिशर्स जो हैं उनको फेयर कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है फॉर द कंटेंट विच दे आर प्रोवाइडिंग फॉर द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज एंड ऑल। एन्यूमरेटिव अकाउंटेबिलिटी में क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स जो हैं यूनिलेटरली डिफाइंड क्वालिटी एंड पॉपुलैरिटी मेजर्स विदाउट ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे जो है पॉपुलैरिटी की बेसिस पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जितना व्यूज़ आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, दे आर मतलब उसी टाइप के व्यूज, उसी टाइप के जो न्यूज़ है उसी को ही रेफ़र कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर कि अभी रिसेंटली जो केस था एसडीएम का, जिसमें लव अफेयर में जो इन्वॉल्व होना एंड डिवोर्स का केस होना, तो ये चीज़ को लेकर के बहुत वाइडली ये सर्कुलेट हुआ था। उसके ऊपर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं और उसके बाद भी जो है उन लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, जो कि कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। क्या मतलब है उसका, पर्सनल है डिसीजन, वॉट एवर इज हैपनिंग दैट्स अ पर्सनल थिंग, बट उस चीज़ को इतना ज़्यादा एलैबोरेट कर देना, इतना ज़्यादा उसको सर्कुलेट कर देने की वजह से बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनके जीवन पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत सारी गर्ल्स हैं उनकी जीवन पे, उनके लाइफ पे जो है वो ज़रूर इम्पैक्ट पड़ा है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी की बात है वो चीज़ ध्यान नहीं दे जा रही है, बट पॉपुलैरिटी एंड क्वालिटी भी ध्यान दे रहा जा रहा है, लेकिन पॉपुलैरिटी पे जो है मेरे को ये बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एवरीवन ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, पॉपुलैरिटी पे कितना ध्यान देते हैं। इम्बैलेंसेस एंड द फ्रैक्चर्स, जो पब्लिशर्स और प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो जॉइंटली दे जनरेट रेवेन्यू, डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो रेवेन्यूज होते हैं वो दोनों मिल करके ही उस चीज़ को जो है वो आगे की तरफ वो जो है जनरेट करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पब्लिशर्स को फेयर शेयर जो है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, उनको ज़्यादा शेयर हो जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पब्लिशर्स। Platforms operating under monopolistic and duopolistic conditions impose terms on the publishers। जो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो मोनोपोली है जिनकी, या फिर डुओपोलिस्टिक है, एक इक्के दुक्के लोग ही हैं जहाँ पर, तो वहाँ पे वो पब्लिशर्स के ऊपर जो है वो अच्छा खासा टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं एंड लिमिट। इसकी इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो पब्लिशर्स हैं वो बार्गेन नहीं कर पाते, बिकॉज दे डोंट हैव मच ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मतलब ठीक है, आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से नहीं मान रहे, ओके गो, दिस इज द गेट, आप जा सकते हो, हम दूसरे को बुला लेंगे, वो हमारी बात मान लेगा, तुम नहीं तो कोई और। वही चीज़ है यहाँ पे। एंड डिपेंडेंसी ऑन द प्लेटफॉर्म्स फॉर एक्सेस टू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग markets. So these are the reasons because of which these publishers are also hesitating in order to एक तरीके से बातचीत करने के लिए, उस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करने के लिए they hesitate. Enumerative accountability is absent as platforms define quality and popularity measures arbitrarily, withhold relevant data from stakeholders and refuse to share with regulator and that of the others also. So यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स जो है वो अपना दबदबा बनाए रखती हैं हर चीज को लेकर के कि हाउ व्हाट व्हेन, बट पब्लिशर्स आर द वन हु आर डूइंग अ लॉट चंक ऑफ वर्क बट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज द प्लेटफॉर्म आर द वंस हु आर withholding the relevant data from the stakeholders, they are refusing to share with the regulators। एक तरीके से मतलब ये हर किसी के ऊपर अपना जो है दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म्स आर नॉट doing the things in the right way। मिटिगेशन एफर्ट्स इन अदर कंट्रीज, अब दूसरे कंट्रीज में किस तरीके से हो रहा है ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है एक मैकेनिज्म लेकर के ये आए हैं टू गवर्न द पब्लिशर प्लेटफॉर्म इंटरेक्शन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, leading to Facebook blocking Australian users from accessing news sites until winning concessions। कंसेशंस, इसमें क्या है कि जो फेसबुक है एक बड़ी प्लेटफॉर्म है, तो वो ऑस्ट्रेलियन यूजर्स को जो है वो ब्लॉक कर देती है इन ऑर्डर टू एक्सेस द न्यूज़ साइट्स। दे वोंट बी एबल टू एक्सेस द न्यूज़ साइट्स अगर जब तक है वो न्यूज़ पोर्टल्स उनकी बातों को जो है वो नहीं मान लेते, तो नहीं मानते हैं। तो क्या क्या केस हैं, कैनाडाज ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट एम्स टू इंश्योर फेयर कॉम्पनसेशन। कनाडा में जो है ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट के तहत फेयर कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं पब्लिशर्स को लेकर के एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लोकल न्यूज़ एज वेल। सो ऑल ऑफ देम आर हैविंग दिस थिंग। यूनाइटेड किंगडम के प्लान्स के हिसाब से क्या है, टू इंट्रोड्यूस द लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द बिग टेक्स एंड दैट ऑफ द न्यूज़ आउटलेट्स। तो यहाँ पे लेजिस्लेशन लेकर के आने की बात हो रही है बिग टेक्स और जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनके लिए। इन ग्लोबल साउथ, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड जो इंडोनेशिया है, दे आर ऑल्सो टेकिंग सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट, दे आर ऑल्सो एड्रेसिंग द इम्बैलेंसेज ओवर हियर। इंडिया का जो रिस्पॉन्स है इट इज सेइंग कि स्लगिश रिस्पॉन्स है, तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर जो है इंडिया की तरफ से नहीं है। स्लगिश वर्ड बोल दिया तो दैट्स अ बिग डील ओवर हियर। इंडिया जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो कितना कम से कम ध्यान तो दे रही है, एड्रेस तो कर रही है, लेकिन इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है इस चीज़ को डील करने के लिए पब्लिशर्स और बिग टेक प्लेयर्स के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर के। 2021 में डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन इन्होंने एक प्ली फाइल करी थी गूगल के अगेंस्ट इन द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यहाँ पर इन्होंने गूगल को अक्यूज़ किया था ऑफ अनफेयर वैल्यूएशन एंड यूनिलेटरल डिसीजंस इन द रेवेन्यू
रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, मतलब यूनिलेटरल है, अपने से उन्होंने डिसीजन ले लिया कि किस तरीके से रेवेन्यू शेयर होगा। तो उस चीज़ को लेकर के इन्होंने जो है CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है प्ली फाइल करी थी। द इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसाइटी दैट इज INS, इन्होंने भी जो है प्ली फाइल करी थी गूगल के अगेंस्ट, गूगल्स सर्च रिजल्ट्स अफेक्टिंग द रेलेवेंस ऑफ न्यूज़ कंटेंट फॉर द वेरियस पब्लिशर्स। बिकॉज वहाँ पे जो है देखिए, जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ऊपर के जो टॉप 2-3 होते हैं, हार्डली पहला जो होता है हम लोग उसी पे क्लिक कर देते हैं, दूसरा तीसरा बहुत ही कम लोग जो है वो थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे तक जाते हैं, या फिर नेक्स्ट पेज तो हार्डली ही कोई है जो कि नेक्स्ट पेज भी देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इनका जो सर्च रिजल्ट है गूगल का, वो उनकी जो पब्लिशिंग्स नहीं, मतलब ये जो पब न्यूज़ कंटेंट पब्लिशर्स थे उनके कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, बिकॉज इट वाज नॉट शोइंग ओवर देयर। बिकॉज हम जब भी सर्च करते हैं तो गूगल पे ही तो करते हैं, तो गूगल जो हमको दिखाता है हम वही तो देखते हैं। व्हाट डिफरेंट वी आर सीइंग, नथिंग। जो हमको दिखा रहे हैं हम वही देख रहे हैं। और कौन सा सर्च इंजन आप यूज़ कर लेते हो? हाँ, बहुत ही कम अलग। आई डोंट थिंक सो एवरीवन यूजेस गूगल। जो एप्पल में होंगे सफारी यूज़ करते होंगे, और क्या ही कर लेते हैं। तो जो वो हमको दिखाते हैं हम वही देखते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनांस जो कि 2022 में आई थी, दे अकॉर्ड द कंसर्न्स ऑफ DNPA एंड INS एम्फसाइजिंग द नीड टू इवैल्यूएट द कॉम्पिटिटिव बिहेवियर बिफोर द डिजिटल मार्केट्स बिकमिंग मोनोपोलाइज्ड। यहाँ पर जो है न्यूज़ को भी लेकर के जो है ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये मोनोपोली यहाँ पर अपना चुपके चुपके बना रहे हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर। वी आर सपोज टू टेक इनटू कॉग्निसेंस एंड वी मतलब कि इंडिया को इस चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स लेने की ज़रूरत है। CCI जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकी रिपोर्ट में डिले हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना डिले होगा रिपोर्ट सबमिट होने में, उतना डिले होगा चीज़ों को बाहर निकल के आने में, एंड उतना ही डिले होगा उसके ऊपर कॉन्क्रीट कोई डिसीजन लेने के लिए। तो एक जगह से डिले शुरू होती है, फिर आगे भी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिलेड वे में चलती रहती हैं। The imbalance harming news publishers also affects the readers। obvious सी बात है, सपोज कोई पब्लिशर बोल रहा है कि ठीक है भैया आप 60% ले लो हमसे, ठीक है, एंड उनके न्यूज़ जो हैं वो बहुत सारे फेक भी रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा पब्लिशर वो कह रहे हैं कि हम 30% ही दे पाएंगे, लेकिन इनके सारे न्यूज़ जो हैं वो हमेशा ऑथेंटिक रहते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से जाएंगे तो हमारी जो भी रीड कर रहा है, जो भी सुन रहा है, जो भी व्यूअर्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उन सभी को वो फेक न्यूज़ इम्पैक्ट करेंगे। एंड फेक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलते हैं, झूठ के 1000 पैर, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स विल अल्टीमेटली बी इम्पैक्टिंग अस ओनली। एंड यहाँ पे जो है सपोज ठीक है फेक न्यूज़ ही नहीं ट्रुथ वाला ही है, तो भी तो जो हर किसी को फेयर चांस मिलना चाहिए, तो वो चीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दैट शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। एंड यहाँ पर कंक्लूजन में ये कि जो डोमिनेंस है बेसिकली हम ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, तो इन सभी का जो डोमिनेंस है वो कम करने की हमको ज़रूरत है। एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चीज़ को लेकर के हमको डिसीजन ले लेना चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ न्यूज़ एनालिसिस। कम थे लेकिन बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स थे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम। गुड नाइट।